In this question, a U-shaped vessel shown consists of two cylindrical vertical arms A and B of cross-sectional area S and SB. A very light piston can slide without friction in the arm A and confines water below it. A thin light thread attached to the piston at one of its end passes other two ideal pulleys fixed at the bottom of the vessel and then attached at the other end to the bottom of a very light cube. This is a very light cube of side L. Initially, when a block of mass small m is placed on the piston, the cube floats with negligible portion inside the water. Okay, so its negligible portion is inside the water. So these are the two highlights. Very light cube, and it is negligible portion of it is inside the water initially, and the thread is not slack. How high will the piston move? Okay, if the block is gradually lifted of the piston, so this is gradually lifted from the piston, density of the water is given, and this mass is not given in this problem. So this mass is 3 kg here. Okay, so let's see how to solve this problem. तो अगर इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेट अस सी, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन there is a level difference. Okay, level difference on both the sides. This level difference is equal to h, and if you draw the ability of this block and piston together and the ability of this cube C, so on this ability I am showing the forces. Its weight of piston is 0, it is massless, and there is a tension force. So tension here and here will be same. This is the same string, so this is T and this is mg, its weight, and the pressure force here. So I am showing the pressure force here. Okay, so this is PS into A. So P is the pressure and SA is the area here. So this is SA, and on C I can show the forces of buoyancy like this, and its weight and the tension force. So it is given that it is a very light cube. So since it is very light, we can neglect this weight, and this tension and buoyancy force are equal, and since initially a negligible amount of this is inside this water, so we can neglect the buoyancy force also. So buoyancy force is also neglected initially, and so since T is buoyancy forces are equal, so T is also neglected. T is approximately equal to 0. So from equilibrium of this block and piston, you can say that PSA, this would be equal to mg, and this P I can write since here the pressure you can say 0, and here the pressure will be rho gh. If you take the atmospheric pressure also, so the same relation will come, because if you show the atmospheric pressure, so here you have to show the P naught into area. P naught into area you have to show here. So P naught into area, and in this P we will have P naught plus rho gh. Okay, so this P will be, this P is the pressure here. So this is the same liquid here and here. So at the same level the pressure will be equal. So here the pressure is P naught plus rho gh. Here also the pressure is P naught plus rho gh. So P naught will be P naught into A. This will be acting downward, and here it is acting upward. So that P naught effect will be cancelled, and we will get the same equation. Okay, so you can take P naught or you can avoid P naught. You will get the same relation. Mg is equal to rho gh into SA, and this relation we will use further. Let's move now. Now that block is lifted and gradually lifted, and finally it attains equilibrium condition. So this is the initial condition, and in this initial condition there is a level difference which is equal to small h. Suppose now piston is moved by distance xa. So xa is the distance moved by this piston, because the block is lifted, and this is, let's say, the final equilibrium position. Okay, so this is the final equilibrium position of this piston, and since piston is moving up, and some extra volume of water will come up here. Okay, so since total volume of water is constant, so total volume is constant. So if total volume is constant, so here the level is going up, so here level should go down. Okay, तो यहाँ पे जो लेवल है वाटर का वो नीचे आ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लेवल ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा है वो. सो वॉल्यूम एक्स्ट्रा विल बी SA इंटू XA. So this is the volume SA into XA. This is the volume of water which is extra here now, and the level should come down by, so this is the volume, and volume divided by the area of cross section. So by this much amount this level should come down. Okay, तो ये जो लेवल है वो इतना नीचे आ जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में लेवल इतना नीचे नहीं आएगा. लेवल थोड़ा कम ही नीचे आएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्यूब है, इनिशियली क्यूब इज़ नॉट सबमर्ज्ड इन दिस वाटर. नाउ क्यूब का कुछ पोर्शन जो है इस वाटर के अंदर सबमर्ज होगा. ठीक है, क्यूब का जो मोमेंट है वो कितना होगा, क्योंकि दिस पिस्टन
और ये जो क्यूब है, दिस टू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग एज शोन हियर. यू कैन सी दिस पिस्टन एंड दिस क्यूब इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग. सो जितना डिस्प्लेसमेंट इस पिस्टन का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस क्यूब का भी होगा. ठीक है. सो इफ इट इज़ मूविंग अप बाय एक्स ए, सो दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ दिस क्यूब. ओके, सो दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द क्यूब एंड फ्रॉम हियर इट विल कम डाउन बाय एक्स ए. सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस क्यूब का, दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली इक्वल टू एक्स ए, इक्वल टू दिस वन. ओके, और कुछ लिक्विड भी यहाँ पे नीचे आया क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे, उसके वजह से यहाँ पे लेवल नीचे आ जाना चाहिए. लेकिन दिस क्यूब इज़ डिस्प्लेसिंग सम वाटर, ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, और इसके वजह से जैसे ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला इतना पार्ट, तो इतने पार्ट में यहाँ पर अब वाटर आ नहीं पाएगा. ठीक है, वाटर विल नॉट बी इन दिस पार्ट. तो ये वाला जो पार्ट है एक तरीके से दैट इज़ डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेस होकर के वो यहाँ कहीं पे एडजस्ट होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये क्यूब इसके अंदर नहीं आता वाटर के अंदर, तो फिर ये लेवल इतना नीचे आ जाता, लेकिन लेवल एग्जैक्टली इतना नीचे नहीं आएगा. सो इट विल नॉट कम डाउन बाय एग्जैक्टली एस ए एक्स से बाई एक्स बी. ठीक है, तो एग्जैक्टली लेवल क्या होगा लिक्विड का, तो आई हैव कैलकुलेटेड हियर. सो जस्ट जूम इन दिस डायग्राम. सो इन दिस डायग्राम आई हैव शोन दैट दिस ब्लॉक हैज़ कम डाउन बाई एक्स ए. सो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स ए के इक्वल है. लिक्विड को यहाँ तक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है यहाँ पर, सो दिस पार्ट इज़ नाउ इनसाइड दिस वाटर. ओके, तो यहाँ वाला जो लिक्विड है वो लिक्विड अब यहाँ पर एडजस्ट होगा. ठीक है, तो अब जो लिक्विड का जो लेवल है वो जो रेड लेवल है यहाँ पे, सो इस रेड लेवल के अलोंग यहाँ पर लिक्विड का लेवल आएगा. तो ये यहाँ से सपोज़ ये वाई डिस्टेंस पर है, सपोज़ दिस इज़ वाई डिस्टेंस, तो इतना नीचे आना चाहिए था, ऐसे एक्स से बाई एक्स भी इतना नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिक्विड आ नहीं सकता, वाटर आ नहीं सकता यहाँ पे, तो दैट इज़ एकोमोडेटेड हियर. यहाँ पे वो एकोमोडेट करेगा अपने आप को, और ये वाई डिस्टेंस हो जाएगा. हाउ टू कैलकुलेट दिस वाई डिस्टेंस? सो ये जो इतना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, और यहाँ ये जो बगल में ये वॉल्यूम है हियर एंड हियर, तो इनको इक्वेट कर देंगे और उससे ये वाई कैलकुलेट हो जाएगा. सो लेट्स कैलकुलेट वाई हियर. तो वाई की कैलकुलेशन वेरी सिंपल. तो वाई की कैलकुलेशन दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर दिया. तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, इधर ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज़ वाई एंड द एरिया विल बी द टोटल एरिया माइनस दिस क्यूब एरिया एल स्क्वायर. एंड ये वाला वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज़, तो ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ एल स्क्वायर, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स ए, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज़ ऐसे एक्स ए बाई एस बी. तो सब्ट्रैक्ट दिस टू, और ये इतनी लेंथ आ जाएगी यहाँ पर इसमें, तो मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर. सो यू विल गेट वाई हियर. नाउ अल्टीमेटली वी हैव टू ड्रॉ द एबिलिटीज. सो एबिलिटीज ऑफ दिस पिस्टन, नाउ ब्लॉक इज नॉट हियर, सो ओनली पिस्टन विल बी हियर, एंड एबिलिटी ऑफ दिस क्यूब. सो ओनली टू फोर्सेस, टेंशन एंड प्रेशर फोर्स, एंड बायंसी फोर्स एंड टेंशन फोर्स. आई एम नॉट शोइंग द वेट बिकॉज इट्स वेरी लाइट. तो यहाँ पे दिस टू फोर्सेस वुड बी इक्वल, टी इज इक्वल टू पी एस ए एंड दिस टी इज ऑल्सो इक्वल टू बी. सो टी इज इक्वल टू पी एस ए इज इक्वल टू बी. ओके, सो नाउ जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर. सो दिस बी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सो एक्चुअल में जो यहाँ पे इसकी सबमर्ज डेप्थ होगी, वो सबमर्ज डेप्थ एक तो ये वाली हो जाएगी. ठीक है, एक तो ये वाली, और एक ये वाई भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. तो आई हैव एडेड वाई, और ये वाला जो है वो तो है एक्स ए माइनस दिस मच. ठीक है, तो दिस इज़ द सबमर्ज डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर. दिस इज़ द बायंसी फोर्स. और जो प्रेशर होगा, प्रेशर अब दोनों साइड में जो लेवल डिफरेंस है वो एच डैश रह गया. ठीक है, क्योंकि इधर का लेवल ऊपर आ गया, इधर का लेवल नीचे आ गया, तो लेवल डिफरेंस इज़ नाउ रिड्यूस्ड, तो ये एच डैश हो गया. तो जो प्रेशर यहाँ पर है इस साइड में, दिस प्रेशर इज़ रो जी एच डैश नाउ, एंड एच डैश इज़, तो इनिशियली जो लेवल डिफरेंस था वो एच था. एच में से कुछ माइनस कर देते हैं, तो एच में से अब क्या माइनस करोगे जिससे कि लेवल डिफरेंस आ जाए. तो एच में से अब यहाँ का लेवल कितना ऊपर गया, एक्स से. ठीक है, तो एच माइनस एक्स से, और वहाँ का लेवल कितना नीचे आया, तो लेवल इतना नीचे आ चुका है यहाँ पर इतना. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऐसे एक्स से बाई एस बी, और उसमें से वाई माइनस कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस ही आ जाएगा. दिस रेड लेवल इज़ द न्यू लेवल ऑफ लिक्विड हियर. ओके, तो इस तरह से दिस एच डैश इज़ कैलकुलेटेड. तो जस्ट वी हैव टू यूज़ दिस टू थिंग्स, इनको इक्वेट कर देंगे, और उसमें बी की जगह वी विल पुट दिस वन, एंड पी की जगह वी विल पुट दिस वन. ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स डू दिस. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स ए, एंड दिस इज़ द इक्वेशन. फॉर पी वी हैव टू पुट रो जी एच डैश, एंड एच डैश इज़ दिस वन. वाई की वैल्यू वी विल पुट दिस वन,
and this is the buoyancy force, and y की value again we will put this one. और ये h जो दिख रहा है, h initially we have calculated relation for h, so ये जो initial relation था जिसको equation number 1 लिखा था, that relation I will use here. So h is equal to this. So if you solve this, so you have to do some algebra, and it's not a very difficult algebra. You will get this value of xa. This is the displacement of the piston on the left side, and this is the answer. And now if you rearrange the terms, so you will get the same answer as given in the book. So this is msb minus l square, and you can split this. This will be minus 2sal square minus sal square. So you split this term and then take sa as common. So sa sb, and this is minus 2l square and plus l square. This is sb minus sa, and if you put the values, so you will get the answer as 6 centimeter. Okay, so this is the final answer.